Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, my dear students. Hope you are all well and healthy over there at your homes and you are getting along with your studies. We have started reading your chapter number 9. It's page number 102, Maggie's first reader. Here the theme is reading. Why should people read? Why do people read in their lives? You have been asked some reasons about the top reasons of reading. So you have been given over here in this book some of the reasons by the author himself, the top reasons to read it. He says that it's the cheapest way to travel the whole world. If you want to travel throughout the world without being paid any money or any rent or something, you are supposed to read a book. So it is the cheapest way to travel the whole world. Second, you have been asked that books are my best friend. It's a book has been written by Ayatollah Khamenei, that Bezaban Dost. The books are called the best friends, as the author here has written over here. Books are my best friends. That's why he thought it one of the reasons to read books. Second, the third one is TV is so boring. If someone is watching TV throughout the day, it looks very boring. So why do you read? Now you have been asked this question, why do you read? Complete this bookmark with the reasons, and you have been asked to complete the bookmarks you have given in the book. Take your reasons can be funny or imaginative. Funny हो सकता है, imaginative हो सकता है, thoughtful हो सकता है. Share it with the rest of the class, and you have been asked to share this. So the number one is reading helps us understand the world in a better way, be it in terms of anything, economics, medical science, any other thing, universe, physics, chemistry, or any other thing. The second is it should be the first, I think. The first revealed verse of the Holy Quran, also which descended upon the Holy Prophet, says Iqra bi-ismi rabbik, means read in the name of your Almighty Allah. So this is how the Quran also stresses on reading. And there is a tradition of the Holy Prophet that talabul ilmu ila al-mahdi ila al-lahad. This is one of the traditions of the Holy Prophet, that a person should start learning from the lap of the mother till the lap of the grave. So the third one is recognition is the first and foremost to avoid going astray. जो है पहचान, जो है मारिफत, जो है वो पहली चीज़ है जिससे कि इंसान अपने आप को बचा सकता है कि गलत रास्ते पे जाए, गलत चीज़ों में जाए. तो एंड रीडिंग हेल्प्स, और इस चीज़ को क्या कौन मदद करेगा? पढ़ना जो है वो आपको मदद करेगा. रीडिंग हेल्प्स अस रिकग्नाइज थिंग्स क्विकली, आसानी से आप चीज़ों को पहचान सकते हैं. ये आपको कुछ रीजंस दिया था. नाउ इन दिस चैप्टर you have been asked to read this story about a woman whose love of reading turns her life upside down. Means the way she used to live her life is completely upside down, मतलब ऊपर उल्टा हो गया बिल्कुल ही, जैसा वो जीती थी उसका तो वो ऐसा नहीं रहता है. तो यहाँ से हमने पढ़ना है. The best housewife in Clegro was Maggie Gregory. You have been given the place where Maggie Gregory, where she lives, is Clegro, and she was thought to be the best housewife, यानी जो घरेलू खातून है. Always a right good smell of pie or stew around the door at dinner time. हमेशा जो है एक अच्छा सा, यानी right good means an excellent smell होता था. पाई जो होता है और स्टीव या शोरबे का जो है वो एक बू आता था अराउंड द डोर, उसके दरवाजे के किनारे. डिनर टाइम जब भी होता था वहाँ से उसके घर के किनारे से बहुत मज़ेदार खुशबू आता था. एंड 3 days a week एट टी टाइम, और हफ्ते में जो है 3 बार जो है क्या होता है चाय के टाइम पे, जो 3-4 बजे पीते हैं लोग अक्सर. यू गोट द ओल्ड फैशन्ड विफ. ओल्ड फैशन्ड, या देखो ये कंपाउंड वर्ड यूज़ किया है ओल्ड फैशन्ड, तो उसके आगे विफ यूज़ किया है. वो विफ क्या होता है? ए फेंट स्मेल, एक हल्का सा स्मेल फ्रॉम ए डिस्टेंस, जो दूर से हल्का सा स्मेल आता है उसको विफ कहते हैं. तो ओल्ड फैशन्ड विफ यानी पुराने ज़माने की किस्म की, पुराना जो लोग पकाते थे उस किस्म की एक खुशबू आता था. ओम ऑफ होम बेक ब्रेड, किस चीज़ का खुशबू आता है? ये फिर से कंपाउंड वर्ड देखो, ओल्ड फैशन्ड विफ और होम बेक्ड ब्रेड होता है. घर में पके हुए यानी रोटी की जो है खुशबू आता है. एज यू वेंट बाय, जैसे आप वहाँ से गुजरते हो. तो यहाँ पे क्या है? आई वुड नॉट लेट अबाउट लॉफ क्रॉस माई डोर स्टेप्स. ठीक है,
आई वुडंट लेट, यानी मैं कभी नहीं आने दूंगा क्या, अबाउट लॉफ और क्रॉस माई डोर स्टेप। लॉफ क्या होता है, पीस ऑफ जो केक्स होते हैं या जो पीस ऑफ क्या कहते हैं आपके पास जो ब्रेड होता है उनके पीस को लॉफ बोलते हैं। तो उनमें से एक ख़रीदे हुए ब्रेड के पीस को भी मैं अपने घर के दहलीज से आगे नहीं आने दूंगा कहती है। मैगी यूज टू डिक्लेयर दिस इज़ व्हाट शी यूज टू से इन हर प्रीवियस रूटीन डे टू डे लाइफ, बट when she start reading, her love of reading turns her life upside down। अब उसकी ज़िंदगी को उल्टा करके रख देते। तो ये पहले वाला स्टेटमेंट है जिसमें वो इस तरह से बात कर रहे हैं कि ख़रीदा हुआ एक रोटी का टुकड़ा भी मैं अपने घर में नहीं आने दूँगा। एज़ फॉर द ग्रेगरी फैमिली, अब जो ग्रेगरी फैमिली है उसके लिए क्या है, ईटिंग फिश एंड चिप्स और अ फैक्ट्री पाई, यानी जो जंक फूड्स कहते हैं हम, फिश होते हैं, चिप्स होते हैं या फैक्ट्री पाइज जो होते हैं फैक्ट्री में से जो बना हुआ केक्स या वगैरह जो होते हैं, वो क्या करते हैं, मैगी वुड नॉट हियर ऑफ इट, वुडंट हियर ऑफ इट, उसने कभी इन चीज़ों के बारे में सुना हुआ नहीं था। ठीक है, उसने उसके फैमिली ने भी नहीं सुना था, उसने भी नहीं सुना था। देयर वर 5 लिवली, ठीक है, जो है एक्टिव एंड वेल फिट यंगस्टर्स एट स्कूल। ठीक है, उसके घर में 5 बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं। एंड हैरी, और हैरी जो है द हस्बैंड है, उसका हस्बैंड है मैगी ग्रेगरी का, वॉज ए नाइस ईजी गोइंग चैप। अब चैप बोलते हैं एक आदमी को, एक बॉय, एक लड़के को बोलते हैं। क्या ईजी गोइंग का मतलब है समवन हु हैज़ ए गुड रिलेशन विद एवरीबडी एंड हु इज़ नॉट डिमांडिंग, जो ज़्यादा डिमांडिंग दूसरों से चीज़ें मतलब एक्सपेक्ट नहीं करता। ए ग्लास ब्लोअर यानी जो समवन हु इज़ स्किल्ड इन ब्लोइंग बॉटल्स, जो शीशे की ग्लासेस बनाते हैं उसमें माहिर है। ग्लास ब्लोवर इन ए नियर बाई फैक्ट्री, करीब के फैक्ट्री में वो ग्लास ब्लोवर है, जो उसका हस्बैंड हैरी है। येट फोक गोइंग ऑफ, यानी जो लोग गोइंग ऑफ मतलब जो दूर जा रहे होते हैं टू वर्क बिफोर 7 in the morning, घर से 7 बजे से पहले जो काम पे जाते हैं, वुड सी ग्रेगरीज डोर स्टेप ग्लिसनिंग अलोन इन द रो। अब देर आर रोज ऑफ होम्स देर इन क्लेग्रो एंड when the people who are daily wagers or who are workers, laborers who were going off for their works, they used to see that the doorsteps of the Gregory family is glistening, मतलब वो चमक रहा होता है, अकेले इस पूरे रो में चमक रहा होता है 7 बजे से पहले ही। अब इट्स स्ट्रेंज, ये अजीब बात है, तुम जानते हो, ठीक है, ये बड़ा अजीब है। क्या है, मिसेस बेनेस वुड से ऑफ मैगी बिहाइंड हर बैक। अब उसके पीछे बैठकर जो है ना, एक उनका ये और एक कैरेक्टर है मिसेस बेनेस नाम का, जो कहा करती है उसके पीछे बैठकर, मैगी के पीछे बैठकर, आई नेवर डिड सी ए फैमिली सो फजी एंड हार्ड वर्किंग। सो फजी यानी सो कंसनट्रेटेड अबाउट डिटेल्स, जो छोटी छोटी बातों का ख्याल रखता है, ऐसा फैमिली मैंने कभी नहीं देखा, और हार्ड वर्किंग फैमिली ऐसा मैंने आज तक नहीं देखा है। तो ये बोल रहा है फनी थिंग्स, ठीक है, फनी थिंग्स, शी गोज ऑफ टू मैस एवरी संडे। अब मैस क्या होता है, कॉन्ग्रेगेशनल, जो हमारे पास जमात में जो मातम या जो जमात में नमाज़ें होती है, उस तरह से क्रिश्चियंस में आपके यहाँ पे दिया हुआ है बुक में रिलीजियस सेरेमनी होती है, स्पेशली इन रोमन कैथलिक चर्च में होता है। तो उन्हें अच्छा हर संडे को वहाँ पे जाता है वो, एवरी संडे विथ द प्रेयर बुक, जो दुआओं की किताब हैं वो पकड़ के हाथ में उठा के जाती इन हर हैंड, बट शी कांट रीड ए वर्ड। अब देखो ये अजीब नहीं है, रोज़ वही कुरान की किताबें लेके जाता है लेकिन एक लफ्ज़ भी पढ़ नहीं सकती है। सो कीप इट टिल हियर, वी विल कंटिन्यू इट इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।